اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں اپنی ایک پیاری سی بچی کو، زویا رحمان. کئی بار ہم ان کو بلا چکے ہیں. آئیے بیٹا 5 منٹ میں اپنی اسپیچ، اپنی تقریر جو بھی آپ کہنا چاہتی ہیں یہ کہیے. زویا رحمان آ رہی ہیں. یہ ہماری بہت پیاری سی بچی ہے. انگریزی میں مہارت حاصل رکھتی ہے، ہندی بہت اچھا بول لیتی ہے. تو آج یہ ہم سب سے، اس قوم سے، اس برادری سے، اس سماج سے کیا کہنا چاہتی ہے یا کیا میسج ہم کو دینا چاہتی ہے، اسے آپ ضرور سنیں، بغور سنیں. آئیے بیٹا. سر وہ تو کر دیا آپ نے، صحیح ہے جو انہوں نے بھیجا ہے نا اس میں گڑبڑ ہوگی. Assalamu alaikum everyone. وعلیکم السلام. I would like to begin by thanking the respected senior members of the organization for providing me with this opportunity to share my views on the empowerment of Muslim women. ہیلو The poor status of Muslim women in the Indian society is indeed a matter of concern. We all know that Muslims constitute nearly 15% of the Indian population, but we must also be aware that nearly half of this percentage, that is nearly 7%, it is Muslim women. And this is the large number compared to many Islamic nations. The Sachar Committee report of 2006 highlighted that our community has experienced the slow pace of progress and has remained socio-economically most backward. Muslim women in India are often seen as a minority within a minority and are considered one of the most marginalized groups in India. The structural disabilities on Muslim women are evident in the spheres of education, economic, social and political life, which results in their social exclusion. They have less personal autonomy and political empowerment, and they suffer from both internal and external oppression. In many instances, Muslim men practice what they themselves believe to be an Islamic way, and they oppress their women. According to a 2004 report, more than 60% of the Muslim women were married before the age of 18. More than half of them were illiterate. They did not go to schools, and 70% of them say that they needed permission from their husbands for nearly every activity. The real issue of concern is that many of these Muslim women do not even realize that they have rights, that their religion empowers them with so many rights. They are not connected to other women in an empowering framework. The isolation of the Muslim community, along with its negative attitude towards education, has affected the ability of Muslim women in India to be represented in the mainstream public life. So just like last time, this time too I was searching for some authentic data regarding this issue, and I came across a research study that was conducted by a AMU student in 2018, and it aptly shows the plight of our women in various aspects. The first aspect being education. So female literacy is highest among all other religions. It is highest for the Jain religion, and then it is followed by Christians, Buddhists and Hindus. Muslim women stand at the last. Unfortunately, Muslim women are the most illiterate among them, and not only at the school level, they have a low percentage even at the higher education level. Only 2% Muslim girls reach the graduation level, which means that only 2% of the entire Indian population, Muslim girls do graduation. The next aspect is of employment. Data regarding work participation shows that the share of Muslim women in regular jobs like the government sector or corporate sector or public sector is very low. In rural areas, Muslim women are mostly engaged in self-employment activities, and their participation in regular jobs has been very low, while in urban areas, only 17% Muslim OBC women do regular salary jobs compared to the 57% of Hindu women. The next aspect is of participation in decision making. These decisions can be about their own healthcare, household purchases, or even about visiting relatives. Here also participation is highest among women of other religions and lowest for Muslim women.
Then if we talk about freedom of movement, simply the mobility outside the house of women, in this aspect also Muslim women stand at the last. Then political representation. So in independent India, women and men acquired the voting rights equally and at the same time. Then women also acquired the right to contest elections. Nevertheless, the representation of women, even after having a reservation of 33%, has been very low. Data shows that the representation of Muslim women in Lok Sabha is very dismal. Their memberships never went beyond the mark of 3 in any of the 16 Lok Sabha elections. There were 5 occasions when no Muslim woman was elected. Hence, this research clearly reveals that Muslim women in India suffer from deprivation on almost every front, and this also leads to a serious misrepresentation of our religion. The distorted narrative that injustice and oppression are the foundations of Islam originates from many factors like the patriarchal cultural traditions, political ambitions, and economic and political instability. So the question arises, how does Islam really empower women? The truth is that many of the rights that were given to Western women in the late 18th and 19th centuries, Islam honored women with these rights much before that. The Quran put an end to inequality by granting women spiritual, intellectual, economic and social rights equal to men. My religion also teaches us that men and women are equal in the eyes of Allah. Both genders are considered spiritual beings with the same social and religious responsibilities. In terms of education also, Allah has directed to seek knowledge to both men and women. We are well aware that throughout Islamic history there have been many female scholars and educators. Islam also empowers women economically by granting them rights related to property. They can own and manage their property independently. Women are not obligated to financially contribute to the family as it is the primary responsibility of men, but if they wish to do so, they are absolutely free to engage in economic activities. Islamic law also provides women with various legal rights, which include the right to inherit and own property. The laws also stipulate that women should be treated justly and fairly. It is good to see that this organization, Quraysh Conference of India, has already been working in this right direction by taking many crucial steps like organizing women and then providing them with a platform where their problems can be addressed. Also, they are working on the educational disparities existing between men and women, along with actively working on the dowry issue. Making parents free from the concept of dowry will allow them to invest in their daughter's education, which is very important. So here we can conclude that an improvement in the present day status of Muslim women will not only contribute to the progress of our own community, but it will also lead to the development of our entire nation. I am thankful to the members of this organization for their continuous efforts towards the betterment of our community. And I hope that the day comes soon when we are not seen as the most backward, but as the most empowered community. Thank you. Assalam alaikum. खुदा ताला से आपके लिए हम दुआ करेंगे कि आप इसी तरह से बढ़ती जाएं और जो भी आप बनना चाहती हैं, करना चाहती हैं, वो करें। समाज के लिए, माशरे के लिए, मुल्क के लिए, अपने माँ बाप के लिए। आपका मुस्तक़बिल हमेशा रोशन रहे और आप इसी तरह से बढ़ती जाएं। आमीन आमीन। अब मेरी फहरिस्त में एक बहुत ही अच्छा नाम, बहुत ही तजर्बेकार नाम, और यूँ कह लीजिए कि ऐसी सरजमीन से उनका ताल्लुक़ है। मेरी एक प्यारी सी बहन है जो मुंबई से तशरीफ़ लाई हैं, एडवोकेट तबस्सुम कुरैशी। महिला विंग की हमारी वो मुंबई की इंचार्ज हैं और वो मुंबई से तशरीफ़ लाई हैं। मैं उन्हें ज़हमत सुखन दूंगा कि वो स्टेज पे आएँ। और जब से वो कुरैश कॉन्फ्रेंस रजिस्टर्ड से जुड़ी हैं, उसके दरमियान अब तक उनके ज़रिए क्या क्या काम हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हम अपने ग्रुप के माध्यम से
جانتے ہیں کہ وہ وہاں کیا کیا کرتی ہیں. نہ صرف وہ ایک اچھی ایڈوکیٹ ہیں بلکہ OBC کارڈ بنانے کا تعلق ہو, خدمت خلق کا معاملہ ہو, دیگر بہت سارے جو مسائل ہیں, مصائب ہیں ہمارے اس قریش برادری کے تعلق سے, ان کو حل کرنے کا مسئلہ ہو, اس میں وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی ہیں. تو آئیے بہن تبسم قریشی صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بے شک ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو خالق, مالک اور غفور الرحیم ہے ہمارا, اور کروڑوں لاکھوں درود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. اور میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے نیشنل پریزیڈنٹ سنوبر علی قریشی صاحب, سلیم قریشی صاحب, اور ہمارے ڈاکٹر افتخار صاحب, اکرم قریشی سر, معین خلیل جی اور شرافت علی قریشی صاحب کی, اور باقی کے سارے ممبران کی طرف سے اور سارے ہمارے ممبئی یونٹ کی طرف سے میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں اس سالانہ اجلاس کے لیے. اور ہماری ساری یونٹ نے, ہمارے پریزیڈنٹ ناصر قریشی صاحب نے آپ سب کو بہت بہت مبارکباد پیش کی ہے. 6 جنوری 2024 کو پہلا قریش کانفرنس ہوا جم خانہ میں, جہاں میرا تعارف ہمارے نیشنل پریزیڈنٹ سنوبر علی قریشی صاحب سے ہوا. اور کیوں دیکھا جائے تو تقریباً 2 منتھ کے اندر میں الحمدللہ انہوں نے مجھے وومن ونگ کا پریزیڈنٹ کیا ممبئی سے. اور اسی قریش کانفرنس کے بینر سے میں OBC کے آرگنائزیشن سے جڑی, اور وہاں ہمیں شبیر سر جو نیشنل پریزیڈنٹ ہے OBC آرگنائزیشن کے, انہوں نے مجھے مسلم کمیونٹی جو ممبئی یونٹ کی, وہاں سے بھی لیڈیز کا پریزیڈنٹ کیا. تو یوں دیکھا جائے تو ہماری قریش کانفرنس کے بینر کے جو مادھیم سے جو لوگ جڑ رہے ہیں وہ کافی کوالٹی وائز اور ہر طریقے سے بہت اچھے. سنوبر سر کا انتخاب کافی نمایاں ہے, اور انشاءاللہ اس طرح ہم برتری کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے. میں بہت شکر گزار ہوں جو بچی ابھی گئی زویا قریشی کا, جو انہوں نے آدھی بات تو وومن امپاورمنٹ کو لے کے جو سوالات اٹھائے وہ بے شک لازمی ہے, لیکن اور انہوں نے آدھی بات تو میری کہہ دی ہے. ہاں, بچی کی لینگویج انگلش تھی, کچھ لوگوں کو شاید سمجھ نہیں آئی ہو, لیکن میں یہ آپ سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم اپنا 1960 یا 70 کی اگر اپنی زندگی کو غور کریں تو ہماری زندگی میں کیا تھا, ہماری دعاؤں میں کیا تھا, ہمارے بچے کیا چاہتے تھے, گھر میں فریج آ جائے, ٹی وی آ جائے, ہماری طرز زندگی بہتر ہو جائے. تو اگر آج ہم 50 سال کے بعد دیکھیں تو ہم کافی ترقی کر چکے ہیں, لیکن پھر بھی ہمارا انڈیا ڈیولپ کنٹری میں نہیں آتا, ڈیولپنگ کنٹری میں آتا ہے. اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ اس کی خاص وجہ خواتین کا سماجی طور پر, تعلیمی طور پر, معاشری طور پر آگے نہ آنا. یہ ہماری خاص وجہ ہے. جو ہماری 50% کی پاپولیشن جو ہماری خواتین ہیں ان کے آگے نہ آنے کی وجہ سے, ان کے آگے نہ بڑھنے کی وجہ سے ہمارا ملک اب بھی ڈیولپنگ کنٹریز میں کاؤنٹ ہوتا ہے. اب اس کے ہم سوچیں کہ اس کے کیا مسائلوں کا حل کیا ہے. تو اگر پہلا نقطہ نظری ہم دیکھیں تو پہلی جو اسکولنگ ہوتی ہے ہماری گھر سے شروع ہوتی ہے. ہمارا گھر, ہماری تعلیم, ہمارے ماں باپ. اگر ہم اپنے بچوں میں خود اعتمادی اور خود مختاری کا ایک اچھا اور ماحول کریٹ کریں ان کے سامنے, تو وہ لوگ ڈیل کر سکتے ہیں باہر کی دنیا میں کہ کیسے لوگوں کے ساتھ جڑے, ان میں اچھے بروں کا سامنا کیسے کریں, اور وہ ہر مسئلے مسائل اپنے پیرنٹس کے ساتھ پہلے شیئر کریں. ہم کئی مرحلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بالغ بچوں میں
कुछ नॉलेजेस को लेके हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं, उन्हें नहीं देते, उन्हें नहीं बताते, फिर वो बच्चे मजबूरी तौर पर या तो अपनी मसलों को या अपने प्रॉब्लम्स को अपने दोस्तों में शेयर करते हैं या मोबाइल में ढूंढने लग जाते हैं, और यहाँ से उनकी रहनुमाई है वो गलत तौर पर शुरू हो जाती है। और फिर हम ये शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे मोबाइल देखकर वो बिगड़ रहे हैं या मोबाइल देखना उनका ठीक नहीं है। तो पहली तो हमारी स्कूलिंग शुरू होती है, वो है हमारा अपना खुद का घर। हम पहले अपनी इस्लाह करें, अपने बच्चों के जहन में जो एक फियर ऑफ सेंस ऑफ फियर है कि खौफ है किसी भी तरह का समाजी लेवल पर, एजुकेशनल लेवल पे, उसको दूर करें। उनमें इतनी खुद एतमादी पैदा करें कि वो अपने मसले मसाइल हमारे पास लेकर आएँ और हम उन्हें अच्छी रहनुमाई के साथ उन मसाइल का हल बताएं। दूसरी बात ये कि लेडीज़ में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादियाँ हो गई हैं, तो लड़कियां सोचती हैं कि यहाँ मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब मुझे तालीम की कोई ज़रूरत नहीं है, अब मुझे बच्चों की परवरिश करनी है, ये काफ़ी हो गया मेरे लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम औरतें ये शिकायत भी करती हैं कि मर्दों को हकूक़ हासिल हैं, अपने इख्तियारात हासिल हैं कि वो फैसले ले सके घरों के और बाहर के। क्यों? इसकी वजह यह है कि मर्द अपने हुकूक और जिम्मेदारियां दोनों निभाते हैं और औरतें सिर्फ जिम्मेदारियां निभाती हैं, हुकूक को पीछे छोड़ देती हैं। अगर हम अपने हुकूक और जिम्मेदारियों को दोनों को अपनी ज़िंदगी में वाबस्तगी के साथ निभाएं, और सबसे पहली बात मेरी ख्वातीन बहनों से मेरी गुजारिश है कि अपने आप को यूं बनाएं, इस कदर रिप्रेजेंट करें, दीनी दुनियावी मालूमात से इतना अपने आप को ऐसा बना लें कि लोग घर के हों या बाहर के आपको इज्जत देने पर मजबूर हो जाए, आपको इज्जत देने पर वो मजबूर हो जाए। आपकी शख्सियत जो है वो हर जगह आप एक बुनियादी हिजाब से शुरू करें। मैं ये नहीं कहती कि मुकम्मल हिजाब, बहुत जगह मसले मसाइल आते हैं औरतों को, और अब एजुकेशन तो इतना आम हो चुका है कि हाइब्रिड मोड यानी दो मोड पर भी हम कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। और ये सिर्फ एजुकेशन की बात बच्चियों में नहीं, बल्कि मैं मर्द हजरात से भी चाहूँगी कि भले वो बिजनेसमैन हैं या वो जो भी हैं, आप अपनी तालीम को मुकम्मल करें। आप ज़िंदगी के कोई भी मरहले में हो, जब तक आप अहमियत नहीं समझेंगे, आप अपने बच्चों को वह अहमियत नहीं समझा सकते। दूसरी बात, हमारी सोसाइटी काफ़ी डोमिनेंट नेचर की है, जहाँ ये समझा जाता है कि मेल डोमिनेंट नेचर है। ठीक है, कोई बात नहीं। हमारा इस्लाम भी हमें सिखाता है कि हम मर्दों से 2 कदम पीछे चले, बिल्कुल पीछे चलना भी चाहिए हमें, लेकिन उन्हें ये साथ ही साथ ये भी एहसास दिलाएं कि हमारा होना बहुत ज़रूरी है, हमारे फैसले बहुत ज़रूरी हैं, हम अपने आप में भी इख्तियार रखती हैं, हमारी सोसाइटी, हमारे आसपास के लोग हमारे फैसलों को तरजीह देते हैं। अगर हम ये एहसास दिलाएंगे तो हमारे घर वाले, हमारे रिश्तेदार और समाजी लेवल पर हमारा काफ़ी तरीके से बेहतराई से नुमाइंदगी होगी। तो मेरी ख्वातीन हजरात से ये गुजारिश है कि तालीम को तरजीह दें। समाजी लेवल पे आप जो भी काम करना चाहती हैं, आपके हुनर को आप पहचानें। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है कि आपको तालीम में दिलचस्पी ना हो, ठीक है, आपको सिलाई कढ़ाई बुनाई, आज तो सोशल लेवल पे एक छोटी से छोटी चीज़ को, एक आर्ट ही ले लीजिए, आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट करिए, आप फेमस हो जाती हैं, लोग आपसे जुड़ना शुरू हो जाते हैं, आपके हुनर की तारीफ करना शुरू कर देते हैं। तो ज़रूरी है कि अपने हुनर को पहचानें, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां, जैसा कि अभी जोया बच्ची ने कहा कि बीमारियां, डिप्रेशन औरतों में आम होता जा रहा है। उसकी वजह यही है कि हमारा घर 4 दीवारी है, बेशक उस 4 दीवारी में रहकर भी हम अपने आप को समाजी तौर पर बहुत बेहतर बना सकते हैं, और हमें बनाने की ज़रूरत भी है। ओबीसी के लिहाज से मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट ओबीसी के ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट के शब्बीर अंसारी सर ने, जो ओबीसी के लिए बहुत मेहनत की 1967 से पहले, और आज उनके सेक्रेटरी इसाक खड़के साहब हमारी कुरैश कॉन्फ्रेंस से जुड़कर नेशनल एडवाइज़र बने हैं। तो हम लोगों का काफ़ी इरादा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि ओबीसी के लिए
बहुत मेहनत करें और सिर्फ बॉम्बे ही नहीं, इंडिया में हर जगह ओबीसी को आम करना ज़रूरी है, क्योंकि ओबीसी जो है वो अगर एक घर में बनता है तो वो 40 अफराद को इसका फ़ायदा पहुंचता है। एजुकेशनल लेवल पे, एम्प्लॉयमेंट लेवल पे, हमारे हर तरह के रिजर्वेशन पे। और ख्वातीन के लिए भी मैं आप मर्द हजरात से ये मुखातिब होना चाहती हूँ कि हम टैक्स भरते हैं लेकिन पूरा फ़ायदा नहीं उठाते। हमारी औरतों को कहीं रिजर्वेशन मिला है, कहीं 20% एजुकेशन में है, पर हम जाते ही नहीं है। हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, हम कॉलेजेस बना रहे हैं, लेकिन जब ख्वातीन वहाँ पर एडमिशन ही नहीं ले रही तो इन कॉलेजेस का क्या फ़ायदा। जब आप उन्हें भेजेंगे नहीं, उन्हें पढ़ने की इजाज़त नहीं मिलेगी तो वो कैसे आगे आएंगी। तो ज़रूरी है कि आप एजुकेशन लेवल पे तालीमी बेदारी बच्चे बच्चियों में लाएं और उनमें इतनी खुद मुख्तारी पैदा करें कि वो समाज में जो भी मसले मसाइल है वो आपसे शेयर करें, आपको बताएं। और हुकूकी ज़िंदगी में इसका होना बहुत ज़रूरी है। इल्म जो है हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि इल्म बहुत ज़रूरी है, मर्द हो या औरत। तो इल्म की ज़रूरत को समझते हुए जो मसले मसाइल हमारी समाज फेस कर रही है या हमारे समाज में हो रहे हैं एजुकेशन को लेकर, इस पर दोनों ही, चाहे वो मर्द हो या हमारे मोहतरम हजरात हो, उन सबको इस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। और ख़वातीन को आगे लाने के लिए आप उन्हें बढ़ावा दीजिए, उनमें हिम्मत और हौसला अफजाई करें, ये मेरी आप सबसे गुजारिश है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सनोबर अली कुरैशी सर की, जिनके कुरैश कॉन्फ्रेंस के लिए हम बहुत दुआएं करते हैं। हमारी मुंबई यूनिट के प्रेसिडेंट नासिर साहब, वाइस प्रेसिडेंट एडवोकेट तहजीब और वाइस प्रेसिडेंट मेहताब कुरैशी, वाइस प्रेसिडेंट आसिफ, वाइस प्रेसिडेंट फिरोज़ कुरैशी और वाइस प्रेसिडेंट ज़हीर भाई, वाइस प्रेसिडेंट ज़ुबैर कुरैशी, इन सब ने आप सबको बहुत मुबारकबाद पेश की है। और मैं कुरैश कॉन्फ्रेंस के लिए हमारे शायर हैं एक नई मख्तर, उनका कुछ चंद अशार पेश करना चाहूँगी कि बेशक मुश्किलें तो आएंगी रास्ते में, बहुत लोगों के जहन हमसे जो है कि बराबर नहीं होंगे, जो हमारी सोच से यकसा नहीं होंगे, कुछ हमारे खिलाफ होंगे, कुछ हमसे मेल भी खाएंगे, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है। और इस अशार के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी कि धूप से गुजरे जो हम सल्ले अला पढ़ते हुए, आ गया अब्रे करम सल्ले अला पढ़ते हुए, मंजिलें खुद ब खुद आ जाएंगी इस्तकबाल को, तुम उठाओ तो कदम सल्ले अला पढ़ते हुए। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया बहन तबस्सुम, आप मुंबई से तशरीफ़ लाई और बहुत ही अच्छे और प्यारे अंदाज में अपनी रिपोर्ट्स आपने पेश की। न सिर्फ हम बल्कि पूरा मुआशरा। और बोलेंगी जी, हाँ बोलिए ना। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया इस इज्जत अफजाई का और मेरे हौसले को बढ़तरी देने का और मेरे ख्यालात को इजहार देने का ये जो प्लेटफॉर्म आप लोगों ने दिया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। कुरैश कॉन्फ्रेंस काफ़ी बरतर बाला हो और दिन ब दिन इसके चार चांद लगे और यहाँ जितने भी हजरात आए हैं, कोई बात नहीं, हम क्वांटिटी में नहीं है, हम क्वालिटी में बिलीव करते हैं। ये बहुत नायाब चेहरे हैं जो यहाँ आए हैं, अपने आप को आम मत समझिए। आपने इस मुहिम के लिए, इस तंजीम के लिए, इस इजलास के लिए वक्त निकाला, तो आप खास हैं, आप आम लोगों में से नहीं हैं। पर ये बेदारी आप अपने से आगे दो नहीं 200 लोगों में पहुंचाने की आपको ज़रूरत है। आपको और लोगों को बेदार करने की ज़रूरत है हर तरह से। मैं ट्रेडिंग वगैरह पे बात नहीं कर सकती, मुझे उसका जिस बात का नॉलेज नहीं, मैं नहीं कहूँगी। बिजनेस के माध्यम से जो हजरात यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, जो इस्लामिक कल्चर्स के हिसाब से लाए हैं, स्कूलिंग कॉलेज के हिसाब से लाए हैं, बेशक आप अपनी फील्ड में बहुत एक्सपर्ट हैं, आप लोग जो भी काम कर रहे हैं बहुत बेहतर है। और हमारी मुंबई यूनिट तो इससे इस कदर खुश है कि वो दिन दूनी और रात चौगनी इसकी तरक्की की दुआएं भी कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं।
कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब जेंट्स कमेटी कुरैश कॉन्फ्रेंस के लिहाज से मीटिंग नहीं करती। वो सब मेरे ऑफिस पर आते हैं और कुछ ना कुछ प्लान करते रहते हैं, कोई ना कोई प्रोग्राम की वो लोग प्लानिंग करते रहते हैं और ये देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। पर सिर्फ बॉम्बे ही नहीं, मेरी उम्मीद है, मेरी ख्वाहिश है कि जिस तरह बॉम्बे की यूनिट हमारे, ठीक है बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन है, यहाँ एजुकेशन के लेवल पे हमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती, लेकिन जो दीगर शोबा है, जो पिछड़े हैं, जहाँ पे एजुकेशन की को लेकर काफ़ी सोच है जो है कि इतनी इजाफा नहीं रखती या उसको बढ़तरी हासिल नहीं है, ख़ास तौर पे वुमेन्स एजुकेशन को लेके, उनमें बेदारी लाने की बहुत ज़रूरत है। तो आप सारे हजरात जो काफ़ी सारे हजरात जो हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हैं, मैं चाहूँगी कि वो अपने स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस एजुकेशन की अपलिफ्टमेंट के लिए, वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए, वुमेन सोशलाइजेशन के लिए बहुत काम करें और हमारी कुरैश कॉन्फ्रेंस को एक नई पहचान दे वुमेन अपलिफ्टमेंट के नाम से, जो आज तक नहीं मिली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक बहुत ही अच्छी और खूबसूरत रिपोर्ट पेश की। आपकी ये बातें सुनने के बाद में न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे मुआशरे के लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे बीच में, हमारे दरमियान में हमारी ऐसी मस्तूरात हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बच्चियां हैं, जो न सिर्फ इस कौम का नाम रोशन कर रही हैं, बल्कि ये जानने के लिए भी हमें अच्छा लगता है और ये हम पहचान पा रहे हैं कि हमारी कौम भी बहुत तरक्की कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बहन। शुक्रिया। हमारे बीच में जस्टिस अब्दुल सत्तार कुरैशी साहब के साहबजादे एडवोकेट अब्दुल रशीद कुरैशी साहब मौजूद हैं और एक हमारे दोस्त जो उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री निसार खान साहब भी मौजूद हैं। तो आपका मैं दिल की गहराई से इस्तकबाल करता हूं। आप लोगों ने यहां आकर वक्त दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं काफ़ी देर से एक नाम पुकार रहा हूँ, एक बार और उस नाम को बोल देता हूँ क्योंकि फिर मुझे दूसरा एक प्रोग्राम शुरू करना है। हमारी सेंट्रल कमेटी इसमें आने वाली है। हाजी मुख्तार कुरैशी, जिनका ताल्लुक़ मुंबई से है, तो वो आ जाएं, अगर हैं तो अपनी बात रखें। आइए सर, 3 से 4 मिनट में आप अपनी बात को रखें। अच्छा, सेंट्रल में इसको नाम दिया गया। हाँ, चलिए रहने दीजिए आप। अच्छा, सेंट्रल कमेटी, माफ कीजिएगा सर, ये पर्ची मुझे बाद में मिली। जी सर, आपकी नवाजी से कौम के बिगड़े हुए अंसुर को संवरने के लिए, कौम के बिगड़े हुए अंसुर को संवरने के लिए अपने इखलास का थोड़ा सा सहारा दे दे। मोहतरम सदर मोहत जलसा समर अली साहब और दिल्ली यूनिट के तमाम अहदेदारान और मेम्बरान, हाजरीन मजलिस और दूर दराज से जो मेरी माँ बहनें और हमारे लोग तशरीफ लाए हैं, मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। बिगाड़ तो हमारे अंदर बहुत ज़माने से आ गया है और मैं समझता हूँ कि कम उबीस कई सौ साल का बिगाड़ है, जिसको समझने में बहुत वक्त जाएगा। कुछ लोग, मैं तंसुर नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मजबूरन कहना पड़ रहा है कि तकरीबन बहुत सालों से ठेकेदार बने बैठे थे और कौम के लिए उन्होंने कुछ भी न किया। आज एक तंजीम नौ की ज़रूरत है। इस बिरादरी को तंजीम नौ की ज़रूरत है, जिस बिरादरी की निस्बत इस दुनिया के रहबर आलम से है, जिस बिरादरी की निस्बत इस दुनिया के रहबर आलम से है,
हमको इमाम बनाकर भेजा गया था कि हम दुनिया की रहबरी करें, और आज हम दुनिया के वालों को अपना रहबर, दुनिया वालों में अपना रहबर तलाश कर रहे हैं। ये हमारा इल्मिया है। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, आप सब जानते हैं कि कुरान मुक़द्दस में एक आयत है जिसको सूरह कुरैश कहते हैं। उलमा हजरात यहाँ बैठे हैं, मुफ्तियान हजरात यहाँ बैठे हैं। अगर उसको आप खाने से पहले 3 मरतबा पढ़ लें और खाने के बाद 3 मरतबा पढ़ लें, तो आपके यहाँ ना अला और बला आएगी और ना आपके यहाँ रिस्क में तंगी आएगी। मगर हमने अपना सेवा छोड़ दिया, हमने अपने नबी का तरीका छोड़ दिया। जिस तरीकों को, जिस नस्ल को अल्लाह ताला ने चुना था, नस्ल दर नस्ल जिसको चुना था, आखिर में कुरैश कबीला पे नजर पड़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वासियत उसी में से हुई। हम को तो बहुत फख्र करना चाहिए, घमंड नहीं, फख्र करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमको एक ऐसे कबीले से मुतल्लिक किया है जो दुनिया की रहबरी के लिए आया था। और मोस्टली प्रोबेबली हमारा जो कारोबार है, हम जिससे जुड़े हुए हैं, वो भी हलाल कारोबार है। ऐसा बरकत वाला कारोबार जो किसी के पास नहीं था, जिसको हम बिस्मिल्लाह करके शुरू करते थे, और जिस बात में बिस्मिल्लाह की बरकत आ जाए तो उसकी क्या कहने। मगर आज हम और हमारा कारोबार ना जाने कहाँ चला गया है। हमारा कारोबार आज हमारा नहीं रहा है, आज कारोबार गैरों के हाथों में चला गया है। आप नज़र उठा के देख लीजिए, हमारी कितनी कंपनियां हैं और गैरों की कितनी कंपनियां हैं। आप नज़र उठा के देख लीजिए, गैर हमारे कारोबार से फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारे लोग मार खा रहे हैं। हमारे लोगों के लिए जिल्लत रखी हुई है। हमारे महाराष्ट्र से कुछ लोग आए हैं, मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा, और तमाम इंडिया के लिए बात है कि खुदारा जहाँ जहाँ भी बैल और गाय का ममनू है, गाय का तो तकरीबन पूरे इंडिया में ममनू है, बैल का कुछ सीजन में ममनू है, जहाँ ममनू है अल्लाह के वास्ते उस कारोबार को ना करें, उसके करीब भी ना जाएं। अपने बच्चों को बचाएं, अपने ख़ानदान को बचाएं, जेलों में से जाने से बचें, दूसरे लोगों की मार खाने से बचें। आज नामालूम कितने घर तबाह और बर्बाद हो चुके हैं और हमारे लोग उस बात से बाज नहीं आ रहे हैं। भाई, सड़क पे रेड़ी लगा लो, फल बेच लो, फ्रूट बेच लो, कुछ और काम कर लो, मगर इस काम को ना करो। ये मेरी आप तब से गुजारिश है। रहा मसला, तो हमारे बुजुर्ग, अल्लाह उनको गली के रहमत करे, करवट करवट जन्नत दे। भैया रशीदुद्दीन मैंने देखा तो नहीं, मगर नाम सुना है। उनका कॉल मुझे याद है, वो कहते थे कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं आपसे कहता हूँ कि भैया हम 2 रोटी कमाएंगे, एक रोटी खुद खाएंगे और एक रोटी अपने भाई को देंगे। आज हमारे यहाँ एजुकेशन का मसला है, हेल्थ का मसला है, कारोबार का मसला है, तमाम मसाइल मौजूद हैं और इस मसले का हल बहुत बेहतरीन है अगर मुलजिम हो जाएं, हम एक दूसरे की मदद करने लगें और एक दूसरे को साथ में लेके चलें। मगर हमारे यहाँ इसका उल्टा है, ज़रा सा आपका कारोबार चमक गया, ज़रा सी आपकी दुकान अच्छी चल गई तो हमारे भाई के दिल में हसद होने लगता है। ये बहुत बुरी चीज़ है, तो इससे बचें। दूसरा, तंजीम नौ मैंने कहा कि आज इस बात की ज़रूरत है, मैं किसी दूसरी पार्टी से जुड़ा नहीं था। मेरा पूरा ज़िंदगी का कैरियर जो है समाजी से शुरू हुआ, सियासत में गया, सियासत से फिर मैं हट गया। बहुत तवील मसला है, यहाँ सब कहने की बातें नहीं हैं। उसका लुबे लवाब और निचोड़ ये है कि जिस दिन हम अपने आका की ज़िंदगी पर आ जाएंगे, हम सुन्नतों पे आ जाएंगे। मैं आपसे फ़र्ज़ों की बात नहीं करता, मैं आपसे
किसी चीज़ का तकाजा नहीं करता। मैं आपसे सिर्फ ये कहता हूँ कि अपने आका की सुन्नतें अपना लो, और हम सब सुन्नतों को नहीं अपना सकते। सिर्फ जो हम दिन में 24 घंटे में जो काम करते हैं, चाहे हम बाथरूम में जाते हों, चाहे हम खाना खाने जाते हों, चाहे शादी करते हों, चाहे बीवी के पास जाते हों, वो सुन्नत के मुताबिक उस अमल को कर लें तो हमारी ज़िंदगी कामयाब हो जाएगी। आका की सुन्नतें हमारी इबादत है, आका की सुन्नतें हमारी इबादत है। और कारोबारी हिसाब से भी हम बहुत पीछे हैं। मैं बम्बई से हूँ, बम्बई के साथी हैं, मेरी बहन ही है, वो रिश्ते में भी बहन है माशाल्लाह। वो उन्होंने जो कुछ बात रखी बहुत अच्छी ख्यालात हैं, और हम चाहेंगे कि मिलकर वहाँ पे, मेरा इरादा है कि इंशाअल्लाह इस जमातुल प्रेस का 100 साला प्रोग्राम हम बम्बई में रखें और बम्बई में उसका ऑफिस खोलें और उसको अच्छे ढंग से करें। महाराष्ट्र के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं। आज महाराष्ट्र में जगह जगह आप देखते होंगे, वर्कशॉप पे जो साथी ग्रुप में है वो देखते होंगे महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों से खबरें आ रही हैं और सब पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह। आपके यहाँ पहले तो कुछ लोगों की मतलब वो कहते हैं वडेरा, पाकिस्तान में मतलब एक वडेरा होता था, सारे उसके साथी होते थे, तो वो सब अपने साथियों को लेके चलता था। लेकिन आपकी तंजीमों में मैं देख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर, टीचर, यानी मुफ्ती साहब, कारी, तमाम लोग जुड़े हुए हैं। तो अगर हम कहीं भटकना भी चाहेंगे तो मुफ्ती साहब हमें रोक देंगे कि भाई ये काम तुम गलत कर रहे हो। और मुफ्ती साहब का जो प्लान है पूरे इंडिया में एजुकेशन का, दीनी एजुकेशन का, वो बहुत सराहनीय है। उसको हम लोगों को बहुत आगे लेके जाना चाहिए, उसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। तो मैंने जैसा कहा कि हम 100 साल हो गए हमें बैकवर्डनेस को, और बहुत ज़्यादा हो गए। मैं ज़्यादा कह चुका। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा कहने में आप लोगों को ज़्यादा समझ आई होगी। इसी के साथ मैं आप लोगों का शुक्रिया एक बार फिर अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हाजी मुख्तार कुरैशी साहब, बहुत अच्छे ख्यालात आपने पेश किए। उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने साथी यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने आपके इन ख्यालात को सुना है, आपकी बातों को सुना है, उस पर इंशाअल्लाह ज़रूर अमल करेंगे। सर मुझे इजाज़त चाहिए 10 मिनट, और 2 हमारे मौजू हैं। जिस तरह से आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ, आपको इल्म भी है कि हमारे सूबाई सदर उत्तर प्रदेश मेहरबान अली कुरैशी साहब का इंतकाल हुआ। उनकी अहलिया बीमार हैं, तो उस वजह से वो नहीं आ पाए। उन्होंने अपनी जगह कारी साहब को, सॉरी माफ़ कीजिएगा, डॉक्टर इफ्तिखार साहब को मुतय्यन किया है अपनी एक रिपोर्ट देने के लिए। तो मैं डॉक्टर इफ्तिखार साहब से गुजारिश करूँगा कि वक्त का लिहाज रखते हुए 5 मिनट में अपनी ज़िम्मेदारी को निभा दें और उस रिपोर्ट को पेश कर दें जिसकी ज़िम्मेदारी मेहरबान अली कुरैशी साहब ने आपको दी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के प्रोग्राम के सदर मोहतरम, मेहमान ज़ी वक़ार, मुल्क के मुख्तलिफ सूबों से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान हज़रात, प्रोग्राम की खूबसूरत निज़ामत को अंजाम दे रहे हमारे बड़े भाई मोहम्मद यूसुफ कुरैशी साहब मीरापुरी, और हमारे अज़ला से तशरीफ़ लाए हुए ज़िला सदूर और दीगर मेहमान हज़रात, प्यारी ख़वातीन हज़रात। जैसा कि मुझे हुक्म हुआ है, हमारे सूबाई सदर
علی جناب عزت مآب مہربان قریشی صاحب کی اہلیہ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی بنا پر ان کی حاضری نہیں ہوئی. انہوں نے یہ ذمہ داری مجھے سونپی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم صوبہ اتر پردیش سے آتے ہیں جس کے اندر 75 ضلع ہیں. اگر ہم اس کی آبادی کی بات کریں تو 23 کروڑ 50 لاکھ اس کی آبادی ہے، جس میں سے 3 کروڑ 84 لاکھ 83,967 مسلم لوگ اس میں رہتے ہیں. پرسنٹیج کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 20% مسلم آبادی ہماری اتر پردیش کے اندر رہتی ہے. قریشی برادری کا اگر ہم ایک انالائسس کریں تو پتہ چلتا ہے 7.32% ہم اتر پردیش کے اندر موجود ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ودھان سبھا کی 143 سیٹیں ایسی ہیں کہ جس میں قریش کمیونٹی کے لوگ نرنایک بھومکا میں ہیں. جس طرف کو پہنچ جاتے ہیں ادھر ودھایک بن جاتے ہیں، لیکن ہمارے آپس کے انتشار ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ ضلع ایسے ہیں کہ جن کے اندر بنا قریش کمیونٹی کی ووٹنگ کے لوگ جیت ہی نہیں پاتے، کسی بھی پارٹی سے کوئی تعلق رکھنے والا ہی کیوں نہ ہو. 57 ضلعوں میں مسلم آبادی کو اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 43% کے آس پاس ہے. ہم یہ دیکھیں کہ 30 سیٹیں ایسی ہیں کہ جس میں 40% قریشی کمیونٹی کے لوگ اگر چاہیں تو ان کا اپنا قائد وہاں پر ہو سکتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تعلیمی میدان کے اندر ہمارا صوبہ اتر پردیش خصوصاً میری اپنی برادری بہت پیچھے ہے. لیکن الحمدللہ پچھلے 5 سالوں کا جو انالائسس کیا گیا ہے اس میں ہماری کمیونٹی کی نہ صرف لڑکے بلکہ لڑکیوں نے جو ہے ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے. وہ چاہے نیٹ کا ایگزام ہو یا اس کے علاوہ دیگر ایگزام ہو یا BTC یا BEd کا ایگزام ہو، کافی تعداد میں قریش کمیونٹی کی بیٹیوں نے پرچم لہرایا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مراد آباد ہمارے صوبے کا سب سے زیادہ مسلم آبادی والا شہر ہے، اور رامپور کے اندر 50% لوگ موجود ہیں اور بجنور میں 43%. اسی طرح سہارنپور میں جو ہے 42% لوگ موجود ہیں. اگر ہم مظفر نگر کی بات کریں 41% پاپولیشن مسلم ہے یہاں پر، اور امروہہ میں 40%. بلرامپور میں 37% مسلم آبادی ہے، جبکہ بریلی میں 34% ہے، اور میرٹھ میں 34% ہے، بہرائچ میں 33% اور سنبل میں 78%، جیسا کہ میں آپ کو پہلے رپورٹ میں بتا چکا ہوں. ہم نے ابھی تک جو کام کیا ہے اپنے سنگٹھن کے اعتبار سے تو 25 ضلعوں میں ہمارا سنگٹھن اسٹیبلش ہو چکا ہے اتر پردیش کے اندر. انشاءاللہ میں سینٹرل کمیٹی کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے صوبائی صدر کی قیادت میں اس کو اور مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے، اور آنے والے سالوں میں ہم اپنے پورے اسٹیٹ کے اندر جو ہے انشاءاللہ اپنی کمیٹیاں گٹھت کر لیں گے. ہمارے تعلیم میدان کی بات اگر ہم کریں تو ہم صوبہ اتر پردیش کی ان 25 ضلعوں کے اندر المیزان پبلک اسکول قائم کرنے کے لیے جو ہمارے مفتی صاحب نے خاکہ دیا ہے اس پر ایک سروے کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ہر تحصیل اور ضلع کے اعتبار سے یا ایسی جگہیں جہاں پر ہماری کمیونٹی کے لوگ رہتے ہیں لیکن وہاں پر تعلیم کا کوئی انتظام نہیں ہے، مدارس کا کوئی انتظام نہیں ہے، وہاں ہم فرسٹ پرائیورٹی کے تحت وہاں اس کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے پولیٹیکل امپاورمنٹ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اور وومن امپاورمنٹ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اپنے صوبائی صدر کی مدد سے اور ہماری صوبے کی جو کمیٹی ہے اس کی مدد سے انشاءاللہ بہت جلد اس میں ایک بیٹھک بلانے کے بعد میں اس کو انجام تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صحت کے اعتبار سے اگر میں بات کروں تو پشچمی اتر پردیش کے اندر بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے ہم قریش کمیونٹی کی جانب سے یعنی ہم جو ہے قریش کانفرنس کی جانب سے اپنے CM کو جو ہے ایک لیٹر لکھنے والے ہیں جس میں ہم اپنے ان ضلعوں کے اندر جس میں PCSC نہیں ہے وہاں قائم کرانے کے لیے ان سے مانگ کریں گے جو ہماری قریش کانفرنس کے بینر کے نیچے ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ ہم لائبریری قائم کرنے کے لیے ہمارا ایک پلان ہے کہ ہم ہر ضلع کے اندر جہاں مسلم کمیونٹی بھی رہتی ہے اور دوسرے OBC سماج ہیں انہیں ساتھ میں لینے کے بعد میں اپنی سرکار سے اور ہمارے یہاں پر جو ایک سچر کمیٹی کی رپورٹ ہے اسے لاگو کرانے کے لیے اس کی سفارشوں کو لاگو کرانے کے لیے انشاءاللہ ہم کام کریں گے. اس کے لیے ہماری منصوبہ بندی چل رہی ہے. اسی طرح سے میں صوبہ اتر پردیش کی بات کروں تو وہاں پر جو مسلم آبادی کی ووٹر ہیں ان کے اوپر سب کی نگاہ لگی رہتی ہے، لیکن جب کام کا وقت آتا ہے
تو یہ سب ہم لوگ کو اگنور کر دیتے ہیں. اس کے لیے ایک اویرنیس پروگرام چلائیں گے اور اس اویرنیس پروگرام کے اندر کیا ہماری لیگل کمیٹیوں کا گٹھن ہو یا پھر نکاح کو آسان بنانے کی بات ہو, اس کے تحت انشاءاللہ ہم اپنی کمیٹیاں گٹھت کرنے کے بعد میں وومن امپاورمنٹ, ایجوکیشن امپاورمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پولیٹیکل امپاورمنٹ کو اسٹرانگ کرنے کی پوری کوشش کریں گے. قریش کانفرنس کے صدر محترم کی قیادت میں اور سینٹرل کمیٹی کی حمایت میں انشاءاللہ ہم صوبہ اتر پردیش کے اندر جو ادھیویشن ہوگا مشورے سے طے ہونے کے بعد میں, اس میں کچھ ایسے پوائنٹوں کو لے کر کے آئیں گے جو ہمارے ٹریڈ پروڈکشن کو لے کر کے ابھی تک حاشیے پر کھڑے ہوئے ہیں. ہماری اتنی بڑی کمیونٹی ہونے کے بعد میں برادری کے اندر جو ایکتا نہیں ہے, بھائی چارہ نہیں ہے, اسے قائم کرنے کی ہم کوشش کریں گے. اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے مدد سے اللہ نے چاہا تو ہم یو پی سے اس کا آغاز کرنے کے بعد میں ملک کے کونے کونے تک پہنچائیں گے. میں اپنے صدر محترم کی جانب سے اور صوبائی صدر کی جانب سے آپ لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو ذمہ داری سینٹرل کمیٹی یو پی کو دے گی, ہم لوگ انشاءاللہ اسے پورے کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے, بلکہ اسے عملی جامہ پہنا کر کے بھی دکھائیں گے. ہمارا کیا ہے, وقتی تعاون ہو یا مالی تعاون ہو یا جانی تعاون ہو, سینٹرل کمیٹی کو انشاءاللہ ملتا رہے گا. اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یو پی پورے ملک کے اندر اپنا نمایاں کردار ادا کرے گی. میں کیونکہ وقت کی قلت ہے, اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے بزرگوں کو جنہوں نے یہ پودا لگایا تھا خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جیسا کہ ابھی ہمارے محترم نے بتایا تھا, بھیا رشید الدین ہو یا ان کے علاوہ دیگر ہمارے جو بزرگ ہیں جنہوں نے یہ پودا لگا کر کے اس چمن کو سیراب کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن کسی وجہ سے ہمارے چمن کے اندر جو کمی آئی ہے تو اس میں کیٹناشک لگانے کا کام بھی ہمارا ہی ہے, صاف ستھرائی کا کام بھی ہمارا ہی ہے. تو میں یوں کہتا ہوں کہ دیکھیے دوستو, ابھی تو یہ انگڑائی ہے, آگے اور لڑائی ہے. ہماری لڑائی ہے تعلیم کے لیے, ہماری لڑائی ہے پولیٹیکل امپاورمنٹ کو بیلڈ کرنے کے لیے, ہماری لڑائی ہے وومن امپاورمنٹ کو بیلڈ کرنے کے لیے. حاشیے پر کھڑی ہوئی قوم کو ایک نمایاں کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے پورے ملک کے اس قریشی سماج کا, جسے میں آج کروڑوں کی تعداد میں بسنے والی قریش کمیونٹی کو کچھ سینکڑوں کی تعداد میں یہاں بیٹھا ہوا دیکھا ہوں, یقیناً آپ لوگوں کے اندر ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی قیادت یہاں موجود ہے, جس سے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارا یہ آل انڈیا اسلامی کلچر سینٹر اس بات کی آج گواہی دے گا. اور آج یہاں سے ایک عزم لے کر کے ہم جائیں گے کہ انشاءاللہ آنے والے سالوں کے اندر ہم اس طرح سے محنت کریں گے اور اس طرح سے اپنی قریش کانفرنس کو پروان چڑھائیں گے کہ لوگ اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر رہ جائیں گے. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. میں کہنا چاہوں گا اپنے صدر محترم سے کہ آپ سنگھرش کرو, انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ساتھ تھے اور ساتھ رہیں گے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی تفصیل اور مفصل رپورٹ جناب نے پیش کی, ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں. اور میں آپ تمام لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر افتخار صاحب پچھلے کئی ماہ سے علیل ہیں, بیمار ہیں. باوجود اس کے اپنی علالت کے درمیان بھی وہ یہاں تشریف لائے اور دو بار انہوں نے اسٹیج پہ اپنی رپورٹس پیش کی. میرے پاس ایک اور چھوٹا سا کام بچا ہے سر, آپ مجھے دیکھ رہے ہیں بار بار, مگر یہ کیا کروں میرے سامنے موجود ہے. دیکھیے, قریش کانفرنس رجسٹرڈ کے بینر تلے ہماری ایک اور ونگ چلتی ہے قریش النکاح من سنتی کے نام سے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی جو کارگزاری ہے ہماری 1 سال کی, وہ بھی پیش کر دی جائے. تو میں اس کے لیے ہمارے قاری خالد بشیر صاحب جو ہمارے ضلع مظفر نگر کے صدر بھی ہیں, ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور قریش النکاح من سنتی کے تحت جو بھی ان کے پاس تفصیلات ہیں وہ تمام ہمارے جو حاضرین ہیں ان کو بتائیں. قاری خالد بشیر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج کے اس تاریخی پروگرام کے موقع پر آل انڈیا قریش کانفرنس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آل انڈیا قریش کانفرنس جس طرح سے قبیلہ قریش کے کروڑوں لوگوں کے مسائل پر اپنی توجہ فوکس کر رہی ہے اور کوئی گوشہ, کوئی شعبہ, کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے کہ قریش کانفرنس کے ایجنڈے سے باہر ہو. تمام مسائل جو برادران قریش سے وابستہ ہیں ان تمام مسائل پر مرکزی قیادت کی بہت گہری نگاہ ہے, چاہے وہ شعبہ تجارت ہو, شعبہ سیاست ہو,
शोबा कवानीन हो, शोबा नौजवान हो, शोबा ख़वातीन हो, शोबा तालीम हो, कोई शोबा ऐसा नहीं, कोई उन्वान ऐसा नहीं, कोई मौजू ऐसा नहीं और कोई विंग ऐसा नहीं कि ऑल इंडिया कुरैश कॉन्फ्रेंस जिस पर मुमकिन तरीक़े से काम कर सकती हो और उससे नज़रअंदाज किया गया हो। मैं उसके लिए मरकज़ी क़यादत को बेइंतहा मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस तरह से तमाम शोबे काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसी तरह से कुरैश कॉन्फ्रेंस का एक बहुत ही अहम शोबा, शोबा आसान निकाह, जो बिरादरी का एक बड़ा मसला, शादी की तकरीबात पर फजूल खर्ची और झूठे नामो नमूद और शहरत और इज्जत पर बेइंतहा फजूल खर्ची और रसूमात कबीहा, वो रसूमात, वो तरीक़ाकार और रिश्ते के तय होने से लेकर और बच्ची की रुखसती के बाद तक ऐसे बेशुमार रसूमात हमारी बिरादरी के अंदर पाई जाती हैं जिनका ताल्लुक़ न कुरान करीम से है, उसकी तालीमात से, न अहादीस नबविया की तालीमात से है, न सल्फ सालिहीन की ज़िंदगी से मिलता है और न बुजुर्गान दीन की मंशा और उनकी मुक़द्दस तालीमात में है। और यहाँ तक कि मुस्लिम माशरे का भी वो हिस्सा नहीं है। वो रसूमात कबीहा गैर मुस्लिम माशरे से हमारे कुरैश बिरादरी के कबीले में कहाँ से आ गई हैं वल्लाहु आलम। बाज़ मुशरिकाना हैं, बाज़ बिदआत हैं, बाज़ कुफरिया हैं, बाज़ ऐसी हैं जो सरासर बेहयाई पर मबनी हैं। तो कुल हिंद कुरैश कॉन्फ्रेंस आसान निकाह मुहिम के शोबे के ज़रिए, कुरैश निकाह विंग के ज़रिए से पूरे मुल्क में ये चाहती है कि कबीला कुरैश की तकरीबात, उनकी शादियाँ, उनके रिश्ते, उनके बियाह रसूमात कबीहा से पाक हो जाएं, फजूल खर्ची से पाक हो जाए, नामो नमूद शोहरत पर बेजा खर्च से पाक हो जाए और ये मेहनत और ये पैसा और ये हमारी एनर्जी और ताकत और ये हमारा वक्त मुस्तकबिल में हमारे बच्चों पर, उनकी तालीम पर और उनके बेहतर मुस्तकबिल पर खर्च हो। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कुरैश निकाह मिन सुन्नती के उन्वान से मुख्तलिफ जमातें इस वक्त में काम कर रही हैं, जो मसाजिद में पहुंचकर और खुसूसी मुलाकातों के ज़रिए से और खुसूसी लोगों से और आवाम से मिलकर रसूमात कबीहा पर बात करती हैं, उनको सुन्नतों की दावत देती हैं, मस्जिद में निकाह करने की दावत देती हैं और बारात घरों से बचने की दावत देती हैं, बैठकर खाने खिलाने का मशवरा देती हैं और बारात को बंद करने का मशवरा देती है, जहेज़ को नुमाइश के साथ दिखाने का सिलसिले को बंद करने का मशवरा देती है। जितने भी रसूमात कबीहा हैं उनको ख़त्म करने का मशवरा और उनकी मेहनत कुरैश निकाह मिन सुन्नती की जमातें अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हैं, जिसके नतीजे में मगरबी उत्तर प्रदेश में अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों की तादाद में निकाह ऐसे हो चुके हैं जो कुरैश निकाह मिन सुन्नती की मेहनत से और कुल हिंद कुरैश कॉन्फ्रेंस के इस एजेंडे के तहत हुए हैं। अल्लाह ताला मजीद की तौफीक अता फरमाए। आपसे भी दरख्वास्त मेरी ये है कि जिस तरह से कुरैश निकाह मिन सुन्नती की जमातें सुन्नत के मुताबिक शादियां और आसान निकाह और आसान रिश्तों के लिए मेहनत कर रही है, आप अपने अपने सूबे में इस मेहनत को कीजिए, अपने अपने ज़िले में इस मेहनत को कीजिए, अपने अपने इलाके में इस मेहनत को कीजिए। इंशाअल्लाह इसके बहुत अच्छे नताइज बरामद होंगे और हमारी बिरादरी में जो रसूमात पाई जाती हैं उनका खात्मा होगा और रसूमात पर जो पैसा और रुपया हज़ारों और लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में हो रहा है, वो बच्चों की तालीम पर और बेहतर मुस्तकबिल पर लगेगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप मरकज़ी क़यादत को यकीन दिलाएंगे हाथ उठाकर कि कुरैश निकाह मिन सुन्नती के एजेंडे को आप अपने अपने इलाके में जिंदा करने की, नाफिज करने की और मेहनत करने की कोशिश करेंगे। कौन कौन करेंगे इस सिलसिले में? कुरैश निकाह मिन सुन्नती की जो जमात है गांव गांव, घर घर, मस्जिद मस्जिद, गली गली जाकर मेहनत कर रही है,
اس کے لیے آپ عزائم کریے گا، ارادہ کریے گا، یہاں مرکزی دفتر سے رابطہ قائم کر کے اس جماعت کو اپنے ہاں بلوائیے گا تاکہ وہ جماعت آپ کے ہاں کام کر سکے۔ کیا آپ اس کو دعوت دے کر بلانا چاہتے ہیں؟ آپ کے علاقے میں وہ جماعت کام کرے، بہن بیٹیوں کے نکاح آسان ہو جائیں، سنت کے مطابق ہو جائیں، رسومات قبیحہ ختم ہو جائیں۔ اس کے لیے خاص طور پر میں الحاج سلیم صاحب جو ہمارے قائد ہیں اور اس کل ہند کانفرنس کے سینئر نائب صدر ہیں، ان کی طرف ہم سب کے لیے ایک مثالی ہے کہ یہی سرزمین دہلی پر ایک شادی کی تقریب ہو رہی تھی جس میں رسومات قبیحہ کے ساتھ ساتھ ہمارے ایجنڈے کے بالکل خلاف اور شریعت کے خلاف کچھ کام ہو رہے تھے۔ تو میں سلام و سلوٹ پیش کرتا ہوں علی جناب سلیم صاحب کو کہ انہوں نے اسی موقع پر تمام لوگوں کو روک کر وہاں سنت کو زندہ کرنے کی، رسومات قبیحہ سے بچنے کی اور مستقبل میں اپنے بچوں کے تعلیم کی فکر کرنے کی وہی دعوت دی، اور الحمدللہ پورے ہندوستان میں ان کی وہ ویڈیو اور پیغام وائرل ہوا، اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے آن دا اسپاٹ وہاں روکا ہو اور سمجھایا ہو اور ان کا اثر لوگوں نے لیا ہو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب پیار و محبت کے ساتھ میں، خلوص کے ساتھ میں، دل کی گہرائی کے ساتھ میں کوئی بات کہی جائے گی، کوئی معنی نہیں رکھتی کہ وہ دلوں پر چیرتی ہوئے اثر انداز نہ ہو، بشرطے کہ ایسا جذبہ ہو جیسا حاجی سلیم صاحب کا جذبہ ہے۔ میں تمام حضرات سے امید کرتا ہوں کہ آپ سب بھی اپنے اپنے علاقے میں جہاں کھلم کھلا شریعت کے خلاف اور رسومات قبیحہ کو اور نمائش کو اور بارات کو عام کیا جا رہا ہو، آپ ضرور اپنی ہمت بھر کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اتنی آہستہ انشاءاللہ سے یہ اتنی بڑی رسومات نہیں رکیں گی، اسی طاقت سے کہیے جس طاقت سے حاجی سلیم صاحب نے وہاں روکا تھا، انشاءاللہ۔ اور زور سے کہیے ذرا۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔